So I was talking about the adjective chapter in which you have seen the definition and kinds of adjective. Afterwards, I started degree of comparison before all of you, in which you come to know that we have only two parts of a speech, adjective and adverb respectively, which is meant for positive, comparative and superlative. You have also seen how the words change from positive to comparative and comparative to superlative. Afterwards, you have seen that I have changed the sentence from positive to comparative and positive to superlative. Afterwards, you have also how to change the sentence from superlative to comparative, superlative to positive. These are the sentence pattern I have explained before all of you, saying that these sentence patterns are very helpful to write the answer of the questions in a very comparative way. सर And in yes, सर हम लोग का अभी मॉडल चल रहा था. this is the class of 10 or 8. 8. Eight. Eight. Oh 8 my and God, 7. 8 and 7. Yes, sir. I understood. Actually, there was a misconception in my brain. I understood that Yes, this sir. is the class of 10. Anyway, class 8. To provide me 30 seconds only to change my mindset. Uh, the chapter was going on models. No, Yes, sir. Yes, sir. models. And models we have finished should, out to, must. Afterwards, finished. Afterwards, can, may, could, and might. No. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now everything is changed. My misconception has been changed also. Let us enjoy. Today, I am going to finalize the model saying a peculiar kinds of words that is known as marginal verb. Marginal verb. The name is marginal. Just you see and enjoy the class. Marginal verb. Have you heard such sort of words during your study? क्या आप लोगों ने इस तरह के शब्दों को सुना है अपनी पढ़ाई के क्रम में? मार्जिनल वर्ब किसे कहते हैं? What it means? If any students wants to answer me, you should yourself feel free to give the answer. What do you mean by marginal? What is marginal? What is marginal verb? You have learned auxiliary verb, you have learned helping verb, you have learned modal verb, and today we have a new concept. आज एक नया शब्द है हम लोग के पास, marginal verb. किसे कहते हैं? कोई भी छात्र? सर ये सेमी मॉडल्स होते हैं. ये सेमी मॉडल्स होते हैं. ऐसा नहीं है बेटा. सेमी मॉडल. मॉडल. चलो आज सीखते हैं कि मार्जिनल वर्ब किसे कहते हैं और करना. बोर्ड सबको विजिबल है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. मार्जिनल वर्ब किसे कहते हैं? इसे कहते हैं हम मेन वर्ब. मेन वर्ब प्लस मोडल वर्ब. गौर से समझना, फिर दोबारा समझने का मौका नहीं मिल पाएगा. मेन वर्ब प्लस मोडल वर्ब इज इक्वल टू मार्जिनल वर्ब. दिमाग में सेट करो. मेन वर्ब प्लस मोडल वर्ब इज इक्वल टू मार्जिनल वर्ब. सबसे पहले मेन वर्ब का जिस में गुण हो, मोडल वर्ब का जिस शब्द में गुण हो, वैसे शब्दों को हम मार्जिनल वर्ब कहते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ मेन वर्ब एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मोडल वर्ब मेक्स मार्जिनल वर्ब. अब सवाल ये उठता है कि मार्जिनल वर्ब की
जो गुणवत्ता है वह डिपेंड करती है मेन वर्ब और मॉडल वर्ब के प्लस होने पर, दोनों के गुणों को सम्मिलित करने पर। तो हम अगर गुणों को जान तो निश्चित रूप से मार्जिनल वर्ब को समझना आसान हो जाता है। सवाल ये उठता है कि मेन वर्ब का क्या गुण है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसे हम कैसे पहचाने कि ये मेन वर्ब है। और आपकी जानकारी में है कि अंग्रेजी भाषा को सीखने वाले तमाम छात्र अगर पहचानना सीख जाएं आठों प्रकार के वर्ड्स को, पांचों प्रकार के सेंटेंस को, तो उन छात्रों के लिए अंग्रेजी आसान हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूं मेन वर्ब को पहचानने का। तो मेन वर्ब को कैसे पहचाने? वो सारे अंग्रेजी के शब्द जो आप डिक्शनरी में देखते हैं, यदि उन शब्दों का 5 फॉर्म्स बन जाएगा तो वह मेन वर्ब कहलाएगा। यानी प्रत्येक मेन वर्ब के कम से कम 5 फॉर्म्स होते हैं। यानी 5 फॉर्म्स जिसका होगा वह मेन वर्ब कहा जाएगा। ऐसे परिभाषा के दृष्टिकोण से मेन वर्ब को हम जब डिफाइन करते हैं तो यह सिंपल सा होता है, द एक्शन परफॉर्म्ड बाय नाउन और प्रोनाउन दैट इज सेड टू बी मेन वर्ब। लेकिन इससे कहीं ज्यादा आसान है यह समझना कि किसी भी शब्द का यदि 5 फॉर्म्स है तो वह मेन वर्ब है। जैसे आप कहते हो गो, तो गो पहला फॉर्म, वेंट दूसरा फॉर्म, गॉन तीसरा फॉर्म, गोइंग चौथा फॉर्म और गोज पांचवा फॉर्म। अगर आप कहते हो राइट, तो राइट फर्स्ट, रोट सेकंड, रिटन थर्ड, राइटिंग फोर्थ एंड राइट्स फिफ्थ। तो जिस शब्द का 5 फॉर्म्स होता है उसे हम मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब सवाल ये उठता है कि मॉडल वर्ब को कैसे पहचाने, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ऑल द मॉडल वर्ब्स आर इंडिपेंडेंट, it is not controlled by the subject and it always takes verb first form. What's property of modals? The property of modals are quite simple. When modals are not controlled by the subject and always take verb first form. modal verb वह है जो सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता और हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लेता है, उसे हम मॉडल्स के नाम से जानते हैं। तो ऐसे जिस शब्द में मेन वर्ब का गुण हो और मॉडल वर्ब का गुण हो उसे हम कौन सा वर्ब कहेंगे? मार्जिनल वर्ब। मार्जिनल। मार्जिनल। यस। अब आपको मार्जिनल वर्ब किसे कहेंगे ये समझ में आ चुका है। यानी मार्जिनल वर्ब के पास दो दो गुण होना चाहिए। नंबर 1, उसके अंदर मेन वर्ब की भी प्रॉपर्टी हो, मेन वर्ब का भी गुण हो और साथ ही साथ मॉडल वर्ब का भी गुण हो। और जिस शब्द में दोनों गुण पाए जाएंगे उसे हम मार्जिनल वर्ब कहेंगे। और इस मार्जिनल वर्ब की श्रेणी में हम लोग के पास मात्र 3 शब्द हैं। गौर कीजिएगा, मात्र 3 मॉडल्स हैं जिसके अंदर मॉडल का भी गुण है और मेन वर्ब का भी गुण है। सबसे पहला इस क्षेत्र में आता है यूज्ड टू, दूसरा आता है नीड नॉट और तीसरा और अंतिम आता है मार्जिनल वर्ब की श्रेणी में, उसे हम लोग कहते हैं वेयर नॉट। कौन कौन से शब्द हो गए हम लोग के पास? यूज टू, नीड नॉट और शुड नॉट। डेयर नॉट। यस, यूज टू, नीड नॉट और डेयर नॉट। अब यहां पर जानने समझने की यह बात है कि हम इस बात से बिल्कुल परिचित हैं कि मॉडल्स को सीखना है
तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में, किस एरिया में उसका प्रयोग किया गया। जो एरिया होगा, द एरिया इन विच द मॉडल्स आर यूज्ड, यू हैव टू कीप इनसाइड इन योर ब्रेन. You have listened, learned a lot of models. For example, when you are learning should, you have seen that should is used in the field of duty, condition, and request. When you are learning ought to, it was used in the field of moral obligation. Regarding the question of must is used to provide you the sense of avasya chahiye first. Second one is a strong prohibition, and the third one was order. When you were learning would, the application of would, you have seen the would is used in the field of determination, condition, request, and impossible imagination. If you are not keeping inside in your brain the field in which the models are going to be used, it will be difficult for all of you to learn the applications of models. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूज टू का प्रयोग हम कहां करते हैं। इसका सिर्फ एक फील्ड है, यह दिखलाता है पास्ट हैबिट को। पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट यानी भूत की आदत। भूत की आदत आप लोग समझते हैं? यस सर। कौन सी भूत? वो जिससे लोग डरते हैं, या वह जो समय बीत चुका है? जो समय बीत चुका है। हाँ, समय जो बीत चुका है, मैं उसी भूत की बात कर रहा हूं जो समय बीत चुका है। उस भूत की बात नहीं कर रहा हूं जिसे हम घोस्ट के नाम से जानते हैं। तो पास्ट हैबिट को दिखलाने का काम यूज टू करता है, भूत की आदत को दिखलाने का काम यूज टू करता है। सेंटेंस से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एक फील्ड, सिर्फ एक एरिया, सिर्फ एक क्षेत्र जहां पर हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझे, जैसे वह रोज सुबह में टहला करता था। वह रोज सुबह में टहला करता था। इस वाक्य में वर्तमान की आदत दिख रही है या भूत की आदत दिख रही है? भूत की आदत। यस, जैसे वह बचपन में फुटबॉल खेला करता था। वह मेरे घर प्रतिदिन आया करता था। ये सारे सेंटेंस पास्ट हैबिट को दिखला रहे हैं। पैटर्न आपको पता है, सारे मॉडल्स का पैटर्न एक ही होता है। मैं फिर से इंडिकेट कर दे रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सारे मॉडल, you have 13 models. You have to develop the sense of recognition using in the particular area. The pattern of the sentence is quite similar, quite same. As per the pattern I have discussed with you, you can write the sentence into English saying that he used to walk daily in the morning. अगर इस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव कर देते हैं, क्या वह रोज सुबह में टहला करता था? तो इस वाक्य का इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बोलने का प्रयास कीजिए आप में से कोई। Used he to walk daily in the morning? हाँ, बिल्कुल सही दिमाग लगाया। यूज्ड ही टू वॉक Daily in the morning. डेली इन द मॉर्निंग।
बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं। लेकिन एक लड़का क्या किया, एक लड़का इसको ऐसा लिखा, उसने लिखा कि डिड ही यूज टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग। जरा गौर कीजिएगा समझने के दृष्टिकोण से। एक तो आपने बताया कि यूज्ड ही टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग, और एक दूसरे छात्र ने इसको लिखा डिड ही यूज टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस? वन इज राइट, वन इज रॉन्ग, और बोथ आर करेक्ट। व्हाट इज योर ओपिनियन? दोनों का अर्थ एक ही मिल रहा है। क्या वह रोज सुबह में टहला करता था? सर दोनों का अर्थ एक है। दोनों का अर्थ एक है। बहुत बढ़िया बेटा। तो फिर बताओ कि दोनों में अंतर क्या है? कोई भी छात्र कोशिश करो, गलत बोलने की छूट है। दोनों में अंतर क्या है, किस बात का है? मैं समय देता हूं मस्तिष्क को लगाने के लिए, हड़बड़ी नहीं है हमें। आखिर दोनों में अंतर क्या है? थोड़ा सा ब्रेन चलाओगे तो अंतर दिखेगा। सर फर्स्ट में ज्यादा जोर देकर बोला गया है कि वो मतलब वह रोज सुबह में टहला करता था। फर्स्ट यूज्ड ही टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग। अच्छा, और सेकंड में? सेकंड में ज्यादा जोर ना होकर कम थोड़ा होगा। अच्छा, कम थोड़ा होगा, ऐसा नहीं है बेटा। आपने जो दिमाग चलाया ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन इसको आज सीख लेना है आप सभी को। ये जो पहला सेंटेंस है यूज्ड ही, यूज्ड टू, जो पहला सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया, यहां पर बिल्कुल मॉडल्स की तरह इस्तेमाल किया गया। जैसे ही शुड गो टू कॉलेज, ही शुड गो टू कॉलेज, इसको इंट्रोगेटिव करेंगे तो शुड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, शुड ही गो टू कॉलेज। ठीक वही पैटर्न है, यूज्ड ही टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग। तो पहले सेंटेंस में मॉडल्स की तरह इस्तेमाल किया गया है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में जो यूज टू इस्तेमाल किया गया है, ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। क्या आपको दिख रहा है? क्योंकि आपको जानकारी में है कि जब हम डिड का प्रयोग पास्ट इन डेफिनिट टेंस में करते हैं तो वर्ब का पहला फॉर्म आ जाता है। यहां देखिए डिड आया है तो आगे में वर्ब का पहला फॉर्म आ गया है। मैं ये कह सकता हूं कि दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों सेंटेंस शुद्ध हैं, दोनों सेंटेंस सही हैं। अंतर किस बात का है? इन फर्स्ट सेंटेंस that मॉडल। starts with used, that is modal, and the sentence starts with did, that is the main verb. The meaning of both the sentences are quite same, but the uses are different, and we are learning uses. It's clear, not clear? क्लियर Clear. सर। क्लियर। अब आगे से दिमाग में कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी? नो नहीं सर। सर। नो नो सर। सर। हम लोग सीख क्या रहे हैं? हम लोग सीख रहे हैं मार्जिनल वर्ब। और मार्जिनल वर्ब की प्रॉपर्टी क्या होती है? मार्जिनल वर्ब की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें मेन वर्ब का भी गुण होता है और मोडल वर्ब का भी गुण होता है। और आपको दोनों गुण को दिखलाने के लिए मैंने दो एग्जाम्पल का प्रयोग किया, एंड आई होप दैट योर यूज टू इज वेरी क्लियर नाउ। दूसरे मॉडल्स को देखते हैं। दूसरा मॉडल हम लोग के पास है नीड नॉट। गौर कीजिएगा, नीड नॉट, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, नीड का अर्थ होता है जरूरत, या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं आवश्यकता। और क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है तो मात्र एक फील्ड इसके अर्थ के मुताबिक होगा, जरूरत या आवश्यकता नहीं है। इसका सिर्फ एक फील्ड। जहां पर भी आपको लगे कि हमें वैसे सेंटेंस को लिखना है या बोलना है जहां पर जरूरत या आवश्यकता नहीं है का अर्थ देना है, तो आप नीड नॉट धड़ल्ले से प्रयोग करें अपनी भाषा को मजबूत करने के लिए। जैसे आप कहते हो उसे कलम की जरूरत
या आवश्यकता नहीं है, तो हम इसे आराम से लिख सकते हैं, ही नीड नॉट ए पेन। बिल्कुल क्लियर है? यस सर। यस सर। लेकिन एक लड़के ने क्या किया, एक लड़का इसको ऐसे लिखने की कोशिश की। उसने लिखा ही डज नॉट नीड ए पेन। दोनों एक ही तरह के सेंटेंस है, दोनों का अर्थ भी बिल्कुल एक है, बोथ आर सेम इन इट्स मीनिंग। देन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ दीज टू सेंटेंसेस? सर सर ऊपर वाला मॉडल है और नीचे वाला मेन। मॉडल्स है और सेकंड वाले सेंटेंस में मेन वर्ब का यूज किया हुआ है। Yes, that's good. In the first sentence, need not is used as a modal. But in the second sentence, need is used as a main verb. And you know very well, the verb having both the property of modals and main is known as marginal verb. It is also clear? सर Yes. सर ये दोनों सेंटेंस में मार्जिनल मतलब मार्जिनल वर्ब किस में यूज किया हुआ है? अच्छा, आपने प्रारंभ में ही नहीं समझा जो शुरू में मैंने बातें की। मार्जिनल वर्ब किसे कहते हैं? आपने सर सुना है सारी बातों को ना? यस सर। सर जो मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों की तरह यूज किया जाए उसे नहीं मार्जिनल नहीं वर्ब। नहीं नहीं, दोनों तरह नहीं, आप थोड़ा सा गलत बोल गई। जिस वर्ब के अंदर मेन वर्ब का भी गुण हो, गुण प्रॉपर्टी, और दोनों का मॉडल वर्ब, प्रॉपर्टी शो करे। हाँ, जिसमें दोनों का प्रॉपर्टी होगा उसी को हम मार्जिनल कहते हैं। और अंग्रेजी की दुनिया में ऐसे मात्र 3 शब्द हैं जो मार्जिनल वर्ब के नाम से जाने जाते हैं, और उनका नाम क्रमशः है यूज टू, नीड नॉट और डेयर नॉट। तो आप देख रहे हो कि जहां पर मैंने लिखा है ही नीड नॉट ए पेन, ये किस तरह से इस्तेमाल किया गया है? मॉडल्स की तरह। मॉडल्स की तरह। लेकिन दूसरा सेंटेंस में आप देख रहे हो कि डज नॉट नीड, यहां पर नीड किस रूप में प्रयोग किया गया है? मेन वर्ब। मेन वर्ब। मेन वर्ब। और मेन वर्ब की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो सारे शब्द मेन वर्ब कहे जाएंगे जिनके कम से कम 5 फॉर्म्स होता हो। वो सारे वर्ब मेन वर्ब हैं जिनका 5 फॉर्म्स आप बना देते हो, और जिनका 5 फॉर्म्स नहीं हो पाता है वो मेन वर्ब हो ही नहीं सकता। और मॉडल वर्ब किसे कहते हो? मॉडल वर्ब वह है जो सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल नहीं होता, हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लेता है। और ये सारी बातों का डिस्कशन मैं आपके क्लास में कर रखा हूं, यदि आपको याद ना हो तो अपनी कॉपी को पलट कर देख लें। इट्स क्लियर? यस सर। यस सर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और अंतिम मार्जिनल को देखते हैं। अंतिम मार्जिनल में आ रहा है हम लोग के पास डेयर नॉट। डेयर का अर्थ होता है साहस, या आप इसे कह सकते हो हिम्मत। और नॉट लगा हुआ है तो यही आपका फील्ड बन जाएगा, एक ही फील्ड है। वैसे वाक्य जिसमें आपको कहना है कि साहस नहीं है या हिम्मत नहीं है, तो आप आराम से डेयर नॉट का प्रयोग करें अपनी भाषा में। wherever you want to express the expression like साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, you can freely use the application of dare not। जैसे आप एक सेंटेंस को देखें, उसे जंगल में जाने का साहस या हिम्मत नहीं है। ऐसे वाक्य को आप अक्सर लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। उसे जंगल में जाने का साहस या हिम्मत नहीं है। तो वैसी स्थिति में आपको क्या लिखना चाहिए? बहुत सिंपल सा सेंटेंस, ही डेयर नॉट गो टू द फॉरेस्ट। क्लियर हो रहा है? यस सर।
यस सर। एक सेंटेंस और देखिए, अक्सर इस सेंटेंस को मैं क्लासेस में डिस्प्ले किया हूं, आपको समझने में सहूलियत होगी। जैसे किसी ने कहना चाहा कि तुम्हें मेरी कलम छूने की हिम्मत कैसे हुई। सेंटेंस को मैं कर दिया हूं अफर्मेटिव, नॉट को मैंने हटा दिया है, सिर्फ सेंटेंस का एक्सप्रेशन जा रहा कि तुम्हें मेरी कलम छूने की हिम्मत कैसे हुई। आप देख रहे हो कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो आप इसे लिख सकते हो हाउ डेयर यू to touch my pen. टू नहीं, थोड़ा सा मैं टू पे बात करता हूं। हाउ डेयर यू टच माई पेन। लेकिन एक लड़के ने इसको लिख दिया ऐसा कि हाउ डिड यू डेयर टू टच माई पेन। अब जरा बताना बेटा कि इसमें कहां पर मैंने कौन सा चीज इस्तेमाल किया, कहां पर मॉडल्स आया, कहां पर मेन वर्ब आया। यू हैव टू फाइंड इट आउट। बोथ द सेंटेंस आर करेक्ट in its meaning, in its expression. You can use both of them, but what's the basic difference between these two sentences? सर ऊपर वाले में आया मॉडल, ऊपर वाले में मॉडल। फर्स्ट वाले सेंटेंसेस में सर मॉडल आया है और सेकंड वाले तो सेंटेंस second में आया है में main मेन verb। वर्ब आया है। यस, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये मॉडल आया है, इसीलिए आगे में टू का प्रयोग नहीं किया गया। मॉडल्स के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। आप नहीं कह सकते हैं शुड टू, आप नहीं कह सकते हैं वुड टू, आप नहीं कह सकते हैं कैन टू, मे टू। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं डेयर टू। लेकिन जब यही डेयर मेन वर्ब की तरफ प्रयोग किया गया तो आगे में टू आ गया। जब मॉडल्स की तरफ प्रयोग किया जाएगा तो टू नहीं आएगा डेयर के साथ, और जब मेन वर्ब की तरफ प्रयोग किया जाएगा तो टू को हमें लाना पड़ेगा। In this way, today you have learned all the three kinds of marginal verb known as used to, that is used to denote the sense of past habit. Second one is need not, that simply indicates जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है. And the last marginal verb dare not, the meaning provides you साहस नहीं है और हिम्मत नहीं है. Now you can use them frequently in your speaking and writing both. Here I have completed your all the application of modals. It means 13 modals and 13 modals and 14th auxiliary verb you have completed. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंग्रेजी की दुनिया का बेस है, आधार है, मात्र दो चीज। पहला आधार है, आप गौर से समझने का प्रयास करेंगे। पहला आधार है एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा आधार है एप्लीकेशंस ऑफ मॉडल्स। ऑक्सिलरी वर्ब को आपने स्टडी किया टेंस नामक चैप्टर में, मैंने काफी डिटेल्स में बतलाया आपको, और प्रत्येक टेंस में 10-10 सेंटेंस सीखने की क्षमता आपकी डेवलप हुई। 14 ऑक्सिलरी वर्ब है, तो जाहिर सी बात है आपके मस्तिष्क में वो होना चाहिए। और आज मैंने समाप्त किया मॉडल्स को, जिसकी कुल संख्या है 13। जिन छात्रों ने ये 14 और 13 को, जो कि आधार है, जो कि बेस है, अगर आपने मजबूती से इसे सीख लिया, मस्तिष्क में रख लिया, इसका बार बार प्रयोग आप लिखने में और बोलने में करने में कामयाब हो गए, तो बिलीव मी, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या बाकी जितने भी अंग्रेजी के चैप्टर्स हैं वो सब सीखना आपके लिए आसान होगा। और ये दोनों अगर बेस क्लियर नहीं हुआ तो सिवाय अफसोस करने की सिवाय कुछ भी नहीं हो सकता। छात्रों से मैं सारी बातें खुलकर बतलाता हूं, सारी चीज सिखाने का प्रयास भी करता हूं,
सीखना आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है, कोई आपको जबरदस्ती सिखा नहीं सकता। यदि छात्र के अंदर सीखने का, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, और यदि छात्र के अंदर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, सीखने की प्रवृत्ति नहीं है तो कोई भी उसको सिखा नहीं सकता। तो ध्यान दीजिएगा, आपका ऑक्सिलरी वर्ब में जो एप्लीकेशन है ऑक्सिलरी वर्ब का, उसका मस्तिष्क में बिल्कुल बना रहना जरूरी है, और मॉडल्स के एरियाज को दिमाग में बने रहना जरूरी है। मैं यहां पर मॉडल्स को समाप्ति करता हूं, साथ ही साथ आपको यह भी बतलाता हूं कि अगली जो चैप्टर होगी वो एक्टिव पैसिव आ रही है, और एक्टिव पैसिव को वह ही छात्र एंजॉय कर सकेगा जिसका बेस मजबूत हो चुका है। जिन छात्रों का बेस नहीं बन पाया है, मेरी एक सलाह होगी उनके लिए कि आप उसे जल्द से जल्द मेंटेन कर लें। अगर आपका छूटा हुआ है, आपकी जानकारी नहीं है, बी ग्रामरियन को विजिट कर सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं। जो डाउट्स बनता है हमसे आप पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी। अगले नए चैप्टर्स को मैं चाहूंगा कि आज की पीरियड में नहीं, बल्कि अगली पीरियड जब भी हमें प्राप्त होगी, मैं आपको नए सेंटेंस में, नए चैप्टर्स में आराम से हम प्रवेश कर सकेंगे। इसके पहले कि मैं आपको बोलूं कि क्लास को मैं यहाँ पे समाप्त करने की घोषणा करता हूं, क्या किसी बच्चे का कोई डाउट्स है रिगार्डिंग द प्रीवियस टाउट चैप्टर्स? यस सर। हाँ बोलिए। सर ये डेयर नॉट का आप जो डेयर का जो आप यूज किए डेयर नॉट का, ये मेरा अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। हाँ, क्या क्लियर नहीं हो, बताइए कहां पर हाँ, दिक्कत हो रही है? वो फर्स्ट सेंटेंस में जो हाउ डेयर यू टच माई पेन, ये क्लियर नहीं हुआ। इसमें क्या क्या क्लियर नहीं हुआ, सो तो बताइए हमें। पहला सेंटेंस में मॉडल्स की तरह प्रयोग किया गया है, इसलिए टू का प्रयोग नहीं हुआ। हाउ डेयर यू टच माई पेन, हाउ डेयर यू टॉक टू मी, हाउ डेयर यू अब्यूजिंग हिम, तुम्हें उसे गाली देने की हिम्मत कैसे हुई। जो भी सेंटेंस है, हाउ डेयर यू के बाद एक तो वर्ब डाल करके आप बोलने का प्रयास करो। हाउ डेयर यू डांस ऑन द स्टेज, just you have to develop your habit only. How dare you run after me, तुम्हें मेरी पीछा करने की हिम्मत कैसे हुई। How dare you to open my laptop, मैं मेरी लैपटॉप को खोलने की हिम्मत कैसे हुई। I think if you keep inside in your brain only 3 words, how dare you, afterwards you can use the verb and frame as many sentences as you can. आपको एहसास भी है कि मैं सिर्फ बच्चों को सेंटेंस सिखलाता हूं। क्यों सिखलाता हूं? क्योंकि सेंटेंस ही वह चीज है जिसको हम बोलना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं। आई होप इट इज क्लियर और स्टिल अनक्लियर। क्लियर। क्लियर। एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? नो सर। नो सर। एक सूचना आप लोग को दे दूं, आज की क्लास थोड़ी छोटी थी, चैप्टर्स छोटा था। जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, कि आप लोगों ने नोट कर लिया है या इसका पीडीएफ में आपको भेज दूं? पीडीएफ कर लिया है। पीडीएफ भेज दूं? यस सर। यस सर। साथ ही साथ जो क्लास आज लिया है, छोटी सी क्लास थी आज की, ये सारे क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग का लिंक भी आपको भेज दे रहा हूं। ठीक है? यस सर। यस सर। जिन बच्चों का छूटा हुआ होगा, वीडियो के लिंक में जितनी भी क्लासेस में अभी लिया, ये सब रिकॉर्ड हो रहा था, और जिन छात्रों का आज क्लास में छूटा हुआ है वो अभी इसको चाहे तो ऑब्जर्व बाद में कर सकते हैं। लिंक और पीडीएफ दोनों आप लोग के मोबाइल पर चली जाएगी। मैं रंजन सर के पास भेज दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा। इट्स ओके? ओके सर। एनी मोर क्वेश्चन? नो सर। नो सर। थैंक यू वेरी मच।